everyone and welcome to my channel Creative Space and yet another interesting vlog for all you people. Today we have with us Miss Pooja जो न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा बिलीव करती है. उनकी पूरी फैमिली ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इनटू हेल्दी प्रोडक्ट्स, इनटू न्यूट्रिशन. तो हम रोज वी ऑल आर गोइंग टूवर्ड्स बीइंग वेरी हेल्दी आजकल, बट उसमें से भी कौन सा एक्चुअली प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत हेल्दी है, जो हम रॉन्ग खा रहे हैं या कौन सा खाना ही चाहिए हमें, इसके बारे में एक ब्रीफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये व्लॉग बना रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा, आई नो यू आर वेरी बिजी. Thank you for doing this for my channel and welcome to Creative Space. Please introduce yourself. Thank you, Neha, for having me. And hello, everyone. My name is Pooja Bapna. I have done my MBA in marketing and retail from MIT College. I have pursued law, but always I had this inclination towards doing in business of my own. I mean, something doing on my own. And I was looking for some options, and my family belonged to this business into dry fruits and grains from more than 70 plus years. Okay. So we are into this business from Jalgaon. So my manufacturing unit is also in Jalgaon, where we produce all of these healthy products and we manufacture it there with no preservative at all. And this is all about the healthy affair. Yeah. So thank you for that. So now let's start with the questions. तो मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा होगा पूजा कि जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आपका जो प्रोडक्ट रेंज है, आप क्या क्या देते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इफ यू कैन गिव अस. तो हेल्दी अफेयर है जो 2 years अभी कंप्लीट करेगा अक्टूबर में. सो ड्यूरिंग पैंडेमिक जब हम लोग देख रहे थे आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी हमारे, I mean, all the young people I saw around me were like facing some health problems, some heart issues, stress issue, anxiety issue, blood pressure, cholesterol. And it was like the root cause when we saw it's all about eating habits and the lifestyle issue. Because we have this like 9 to 5 jobs. During pandemic also, it was work from home. The people used to sit in front of the computer at like 10 hours, 12 hours, no workout, no exercise, nothing to do. But what we eat, I mean, हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारे प्लेट में क्या है, that we have to decide. Yeah. हम लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, but कौन से ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, which are healthy, they are healthy. I'm not saying that कि सारे ड्राई फ्रूट्स हेल्दी नहीं है, but आप कौन सा, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉलनट ले रहे हो तो आप कौन सा वॉलनट प्रेफर करते हो, अगर आप सीड्स खा रहे हो, आप आलमंड्स खा रहे हो, तो आप क्या खा रहे हो, आपके बॉडी के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, ये चीज हम लोगों ने देखी, उनको समझा, एंड देन वी केम अप विद दिस द हेल्दी अफेयर थिंग विद हेल्दी प्रोडक्ट्स, द रेंज ऑफ हेल्दी प्रोडक्ट्स. ओके ओके. तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप कर रहे हो? सारे ड्राई फ्रूट्स तो है ही, उसके अलावा अब क्या क्या है? We deal into all the dried fruits, sare nuts. We deal into seeds, flours, cold pressed oils, and we are into syrups. We are into Himalayan garlic, kesar honey. So all the healthy options. If you go for snacks, we have like trail mixes, we have makhanas, we have different flavor of khakras, protein bars. जो snacks के लिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए you can have it and munching time mein. Yeah, and I would like to say that guys, I have tried her products. Along with being yummy, it's good for kids and it is very tasty also. Yeah. So now my next question would be Pooja, if you can just share brief understanding about the balance of nutrition that your body requires in terms of proteins, carbs, fats, etc. क्या जरूरी होती है चीजें? Our body जिसके अंदर सारी चीजें जरूरी है. बॉडी को अगर हम देखे रहे, इट्स लाइक अ मशीन ओनली. वी नीड टू फीड एवरीथिंग इन आवर बॉडी. कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए. आपको बैलेंस डाइट रखना बहुत जरूरी है. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं, जैसे अब बहुत सारी चीजें चलते हैं, यू हैव टू फॉलो ओनली द कीटो डाइट, तो यू आर टेकिंग ओनली द प्रोटीन इनटेक, बट आप कार्ब्स नहीं ले रहे हो, आप बाकी दूसरी चीजें नहीं ले रहे हो. तो आपके बॉडी के लिए सारा बैलेंस डाइट रहना बहुत जरूरी है. प्रोटीन्स, कार्ब्स, हाँ कार्ब्स का इंटेक थोड़ा कम कर सकते हो, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कर सकते हो. इट्स अप टू लाइक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है आप क्या चीज फॉलो कर, एज वाइज भी डिपेंड करता है आप क्या फॉलो करते हैं, क्या नहीं फॉलो करते. जी.
Okay, and abhi my next question now would be then, what are the top 3 misconceptions people have? मतलब लोगों को ये कुछ चीजें पता नहीं होती है when selecting dry fruits हो या कोई भी न्यूट्रिशन चीजें हो, तो क्या डिफरेंस होते हैं? चलो विल स्टार्ट विथ लाइक वॉलनट्स. Yes. मार्केट में you'll get variety of walnuts, shelled wale and without shelled wale. You'll get two types of walnut. Now what you eat, people generally prefer कि without shell वाले ले लेते हैं. It's easy to eat, you can just put it in your mouth and we are done for the day. वैसा वाला चीज होता है. लेकिन अगर आप स्टडी करते हो उस चीज के लिए कि विदाउट शेल वाले वॉलनट्स का न्यूट्रिशन वैल्यू जो रहता है एज कंपेयर टू शेल्ड वॉलनट्स, जो विदाउट शेल वाले वॉलनट्स होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं. वो अगर आप उसको रखते हो, आई मीन यू रेफ्रिजरेट देम, तो वो 3 मंथ्स की, मोर देन 2 मंथ्स उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगा. Yeah. ऑयल का, या ऑयल का स्मेल आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा टेस्ट में बिटरनेस आ जाएगी. और अगर आप शेल वाले वॉलनट यूज करते हो तो शेल वाले वॉलनट्स आर लाइक आप 1 ईयर तक उसको स्टोर कर सकते हो, वो इंटैक्ट रहेगा उसका वैल्यू. अगर आप जैसे शेल वाले, फॉर एग्जाम्पल आई शो यू. Yeah. अगर ये शेल वाला वॉलनट है, इसका मेन, इसको अगर इसका न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर तो है, लेकिन इस चीज को इंटैक्ट रखता है बाहर का शेल. Correct. अगर आप सुपरमार्केट में रहते हो, सुपरमार्केट में आप देखते हो जो शेल निकले हुए रहते हैं, तो टेम्परेचर चेंज होता है, एसी का, बाहर का वेदर चेंज होता है, तो उस वजह से उसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाते हैं. और एज कंपेयर टू दिस, ये इसमें इंटैक्ट ही रहता है. और जो चिलियन वॉलनट्स होते हैं, दे आर लाइक इजी टू क्रैक. आई मीन सी, दिस इज लाइक एंड दिस इज इजी टू क्रैक. यू Oh. कैन आराम से, हाँ, ये इतना इजी है क्रैक करने के लिए. तो पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन, भी नहीं बोल सकते, इट्स इजी वे कि ठीक है यार कौन करेगा, बेटर है हम ऐसे ही खा लेते हैं उसको. एंड गुड पार्ट भी बोल सकते हैं, या बेटर टू हैव वॉलनट इज कि आपने उसको नाइट में सोक किया, जैसे हम आलमंड्स को सोक करते हैं. अगर आप वॉलनट को सोक करके, लाइक 2-3 वॉलनट्स आपने सोक, अकॉर्डिंग टू फैमिली ऑब्वियसली, Yeah. 1 वॉलनट, हाँ 1 वॉलनट और 2 वॉलनट्स हम एडल्ट्स तो ले सकते हैं, और फॉर किड्स यू कैन हैव लाइक 1 वॉलनट तो आराम से. सो ड्राई फ्रूट्स आप जो भी खाते हो, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको सोक करो, वेदर इट बी आलमंड्स, वॉलनट्स, डेट्स, फिग, आप कुछ भी खाते हो इसको सोक करके, ओवरनाइट सोक करके, एंड यू हैव इट इन मॉर्निंग. ब्लैक रेजिन्स, सारी चीजों को सोक करके खाइए. सो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है, उसमें इंटैक्ट रहता है, एंड डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है. हाँ, गरम नहीं पड़ता, हैवी नहीं पड़ता बॉडी के लिए, बच्चों के लिए. राइट राइट राइट, बच्चों के लिए, हमारे लिए भी. हम्म. तो ओके. और आलमंड्स में भी जैसे बहुत सारी वैरायटी है, तो उसमें राइट, डिफरेंस? आलमंड्स में यू हैव वैरायटी ऑफ आलमंड्स. इफ यू गो टू द मार्केट, सुपर मार्केट में जाइए, ग्रोसरी स्टोर में जाइए, दे विल हैव लाइक कैलिफोर्निया आलमंड, अफगानी आलमंड्स, ये आलमंड्स, वैरायटी ऑफ आलमंड्स विथ लाइक प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 500 टू अप टू. बट अगर आप मामरा बादाम लेते हो, you'll get the option starting from 2000 rupees to 4500 rupees. You should always prefer to have मामरा बादाम. मामरा बादाम का जो ऑयल इंटैक्ट रहता है, दैट इज 50% एज कम्पेयर टू कैलिफोर्निया और अफगानी बादाम. उसमें ऑयल का जो कंटेंट रहता है, दैट इज अराउंड 20 to 30% और मोर लेस देन दैट, अगेन क्योंकि एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है, और मामरा बादाम का नहीं रहता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर यू प्रेफर मामरा बादाम रादर देन कैलिफोर्निया बादाम. You should prefer Mamra one. Oh, okay, okay. We have these options. जैसे अगर हम healthy affair में we have studied this, और हम लोगों ने quality wise and pricing wise we opted for, ऐसे नहीं रखा है कि we have 2-3 options of almonds. हमने मामरा ही रखा है. We don't have California almonds का option. Walnuts में we have only Chilean walnut. We don't have even shell, जो without shell वाले walnuts होते हैं, those are expensive as compared to the shelled walnut. But still, हाँ, we didn't opted for those options because वो healthy नहीं है. So we have to provide healthy options to people. तो we opted only for the Chilean walnut जो हम खाते हैं और हमें पता है उसका कि ये चीज ज्यादा सही है लोगों को, and they should understand and we should inform them about it. Okay. So now moving on to next healthy product that you have, which is rare for me because I don't use it every day, but I saw what you provide, is the Himalayan garlic. What is Himalayan garlic and its uses, if you can show? See, Himalayan garlic are this. Can you see? हाँ, बिल्कुल In the छोटे box. छोटे हैं शेल्स के साथ.
हाँ, ये हिमालयन गार्लिक है, इसको एक पोथी लहसुन बोलते हैं, एक पोथी लहसुन, कश्मीरी गार्लिक, हिमालयन गार्लिक, एंड पीपल टर्म इज एट मेडिसिनल गार्लिक ऑल्सो। ओके। यस। सो ये अगर गार्लिक की हम बात करते हैं एज कम्पेयर टू हमारा नॉर्मल द रॉ गार्लिक, यस। ऑब्वियसली ये गार्लिक डोंट यूज, वी डोंट यूज इन कुकिंग एंड ऑल, बिकॉज इसका कुकिंग से तो सारा वैल्यू उसका कम हो जाता नीचे आ जाएगा, सारा कम हो जाएगा न्यूट्रिशन वैल्यू जो है। इसका जो वैल्यू है नॉर्मल गार्लिक से, इट इज मोर देन लाइक 10% ज्यादा न्यूट्रिशन होता है इसमें। ये आपको हेल्प करता है आपके सारे लाइक कोल्ड कफ, जो सीजनल कोल्ड कफ हमेशा होता है, उस चीज को, आपके जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, ये आपके ब्लड को इंसुलिन लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आपके इनफैक्ट ऐसे भी बोलते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके वजह से कैंसर के भी लाइक 50% रिड्यूस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कैंसर के सेल को, आई मीन मोस्ट ऑफ द कैंसर्स के लिए। ये आपके शुगर लेवल को मैंने बताया वो कैसे मेंटेन करता है, आपके ब्लड को थिन करने में करता है, तो आपके बॉडी में क्लॉट्स होने के चांसेस भी कम होते हैं कि है। आपको, यस, प्लेग से, क्लॉट्स होने से, ये सारी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसीलिए इसको, आई मीन दिस इज नोन एज लाइक मेडिसिनल गार्लिक, हिमालयन गार्लिक, या एक पोथी लहसुन। सो मॉर्निंग में इसको पील करना है, इट्स वेरी इजी। And even इट्स kids लाइक can have इट्स this? लाइक Okay. इट्स लाइक अ पर्ल। Yeah, it's like a pearl. You can give this to your kids also? हाँ, दे सकते हो हाफ। और Half. ये अगर इसमें आई मीन थोड़ा सा ये साइज है, इट्स अ बिग वन, इसमें छोटा आएगा तो एक भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. अर्ली लाइक अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थिंग बिफोर ड्राई फ्रूट्स, Okay. एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक, और इसके ऊपर यू कैन हैव वार्म वाटर। अच्छा। और जिनको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, जिनको अगर शुगर लेवल मेंटेन करना है अपने, जैसे मेरे मदर इन लॉ का हार्ट प्रॉब्लम है, उनके कोलेस्ट्रॉल इतना मेंटेन होने के बाद भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा बढ़ा हुआ ही आता है, बिकॉज ऑफ दिस काफी मेंटेन हो गया है। Oh, तो उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है जिसमें ब्लड थिनिंग का प्रोसेस चलता ही है, तो उनका ब्लड थिन रहना ही चाहिए, तो दिस अगेन है। तो हमारे घर में इट्स अ रिचुअल, मॉर्निंग में यू हैव टू टेक दिस, उसके बाद वार्म वाटर, देन यू हैव टू टेक ड्राई फ्रूट्स, जितना यू डोंट हैव ब्रेकफास्ट नॉट एन इशू, बट यू हैव टू टेक ऑल ऑफ दिस थिंग्स, दैट्स अ कंपल्सरी थिंग। oh. Even my kid, he is also like कि हाँ ठीक है ये लेना है, you have to take all the dry fruits, the soaked one. Yeah. So it's a routine. Yeah, it's a very good routine actually. And आजकल तो क्या, because of the weather changes, kids are getting a lot of coughs and colds, and तो अगर ये लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक, we give them I good. mean इतने सारे इन्फेक्शंस है, इतने सारे वायरल आते हैं, सारी चीजें, यू नीड टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी। कैसे, किन इन सब चीजों से, जैसे इसमें है कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, ड्राई फ्रूट से इम्यूनिटी डेवलप होती है, ये सारी चीजों को हमारी बॉडी में आना जरूरी है। वी ओनली सी कि हाँ ये खाने से ये होगा, बट वो खाना चाहिए Yes. तभी होगा, अदरवाइज हाँ, ये सारी चीजें। Yeah, correct. Okay, so Pooja, thank you for that info on Himalayan garlic. It is really, really useful and it is easy to consume also. Thank you for that. And मुझे आपसे next पूछना था that I have seen one more different product जो आपके पास है, वो है black wheat flour. वो क्या है? I'll show you, this is black wheat flour। Okay. जैसे नॉर्मल गेहूं का आटा होता है विच इज व्हाइट इन कलर और बेज इन कलर, ये ब्लैक इन कलर होता है। सो ये एक्चुअली डेवलप किया गया था गवर्नमेंट बाय इंडिया के अंडर पंजाब मोहाली में, Okay. क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंटेशन है कॉल्ड एंथोसाइनिन, जो नॉर्मल वेराइटी ऑफ गेहूं में जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ये करता है, ब्लैक व्हीट हमको देता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, पोटेशियम, फाइबर, एवरीथिंग इन लार्जर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेराइटी ऑफ गेहूं। Okay. जैसे इसमें जो जिंक होता है नॉर्मल व्हीट में, दैट इज 28%, और जो ब्लैक व्हीट में होता है दैट इज 35% Okay. जिंक। आयरन अगर हम बात करें तो नॉर्मल व्हीट में इट्स 25% और ब्लैक व्हीट में 68%। Oh. सो यस, तो देर इज ह्यूज डिफरेंस। ये डाइजेशन में हेल्प करता है आपको, इनकेस डाइजेशन प्रॉब्लम है।
आपको बच्चों के लिए भी इनकेस आपको ब्रेन बूस्ट करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, दिस हेल्प्स. I mean, the ingredients which black wheat have, normal wheat don't have this. People don't know about black wheat. या अगर हम black wheat flour की बात करते हैं तो people seems to understand कि वो खपली वाला गेहूं की बात कर रहे हो क्या, जो स्किन नहीं निकला हुआ होता है वो कर. तो नहीं, खपली गेहूं is different and black wheat is totally different. That is black in color. Or as compared to normal wheat, this is more, I mean, good for your health. Any member of the family, like from your in-laws से लेकर तो बच्चों तक, सबके लिए this is more nutrition than normal गेहूं. एंड But इज इट वेरी एक्सपेंसिव या इकोनॉमिकल no, है वैसे? normal, economical. It's like 60 rupees half kg, 70 rupees का half kg. ओके बट इंग्रेडिएंट्स जो इसमें हैं, जो आपको फाइबर मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीट इसमें ज्यादा रहेगा. ओके 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 ओके, इट्स वेरी यूनिक, इट्स डिफरेंट, सो थैंक यू फॉर दैट पूजा. थैंक यू. ओके एंड अब मुझे स्पेसिफिकली पूछना है बिकॉज ये बहुत लोगों को, गर्ल्स बॉयज किड्स एल्डर, सबको ये जो प्रॉब्लम होती है मैं बोलने वाली हूँ, ये बहुत होती है. लाइक एनी स्पेसिफिक फूड इंग्रेडिएंट ऐसा कोई है जो आप रेकमेंड कर सकते हैं फॉर हेयर? हेयर लॉस बहुत होता है लोगों का. तो ऐसे कुछ आप रेकमेंड करना चाहती है कि नहीं आप ये लीजिए, यू विल सी डिफरेंस? एनी फॉर्म ऑफ आंवला. आंवला. I mean, rich in vitamin C. Any form of आंवला. I mean, you take क्यों आंवला किसी भी फॉर्म में रहेगा तो उसका इंग्रेडिएंट इंटैक्ट ही रहेगा. Whether you take आंवला मुरब्बा, whether you take आंवला कैंडी, whether you take raw आंवला. तो जो भी आंवला आप अगर उसको कुक करके भी खाओगे, उसके इंग्रेडिएंट उसमें इंटैक्ट ही रहेगा. तो आंवला, सो आंवला एक ऐसी चीज है जो आपके डे टू डे लाइफ में आपने लेना ही चाहिए. We do have this amla murabba and amla candy. Yeah. So we started with this only. Okay. Yeah. And even seeds. अगर हम बात करें जैसे फ्लैक्स सीड्स, which is rich in omega 3 fatty acids. Yes. ये आपको स्कैल्प को क्लियर करेगा, आपके जो हेयर को है स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएगा, rather than जो वीक थिनिंग, हेयर थिनिंग जो हो जाती है ना, ये स्टॉप करेगा. ये नहीं कि हेयर फॉल, बट ग्रेजुअली स्लोली यू कैन सी द डिफरेंस अगर ये आप सारी चीजें करोगे तो. बट आंवला इज लाइक द थिंग यू शुड इंक्लूड इन योर डेली डाइट. ओके, इट्स अ वेरी इजी. बट ये ना कि वो आदत पड़नी चाहिए बॉडी को, वो चीजें लेने की. बहुत इजीली अवेलेबल है ये व्हाट एवर यू हैव सेड चीजें. सारी चीजें हैं, देयर इज जस्ट द डिफरेंस. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अब आप मार्केट में जाओगे, यू विल हैव दिस ऑप्शन. एक साइड में आपके पास सारे प्रोसेस फूड रहेंगे, एक साइड में सारे पैक्ड फूड रहेंगे, और एक साइड में आपके पास सारे वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, ये सारे ऑप्शंस रहेंगे. ये आप पे डिपेंड करता है व्हाट यू चूज एंड व्हाट यू ईट. आई मीन व्हाट यू टेक इन योर बॉडी. हाँ, और अगर कुछ भी ना समझे गाइस तो हेल्दी अफेयर को कांटेक्ट कर लेना, पूजा बावले को कांटेक्ट कर लेना, वो भिजवा देगी आपको. एंड इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल, तो या इट्स गुड. Yeah. Okay. So anything else, Pooja, that I must have missed asking you apart from this? आपको share करना है तो? I'll even talk about oil. Yeah. I mean, जो oil, everyone knows about the cold pressed oil now. Everyone is fond of like कि हाँ कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए. We should avoid. But still some people prefer. नहीं, राइस ब्रांड में एड में तो दिखता है ना कि which is good for heart. ये वो एड में दिखता है. एड में तो आपने ये भी देखा होगा कि इज वेरी गुड फॉर ब्रेकफास्ट. बट यू लुक फॉर टुडेज डाइट, अगर आप कोई डाइटिशियन से पूछोगे तो सबसे पहले आपको बोलेंगे प्लीज कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं खाना. नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि आपको कुछ नहीं दे रहा है. मतलब ना कार्ब, कुछ भी नहीं दे रहा है. सो यू शुड नॉट ईट दैट एंड यू शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली कि जो हमने देखा है और वो हमारे लिए अच्छा है. कोल्ड प्रेस जो ये हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है. यू कैन सी ग्राउंडनट ऑयल. अभी कोल्ड प्रेस ऑयल में वी ओनली डील इनटू ग्राउंडनट. कच्ची घानी में ग्राउंडनट का ही ऑयल है. सो देयर इज अ डिफरेंस एंड यू कैन सी द प्योरिटी. आई मीन आई कैन अश्योर यू कि ये मार्केट में कच्ची घानी का ऑयल मिलता है, बट आप कहाँ से ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है. बहुत बार मिक्स ऑयल मिलता है, तो उसको यस मतलब उसमें कच्ची घानी ऑयल होगा और नॉर्मल ग्राउंडनट ऑयल भी मिक्स होगा.
तो वो कितना प्योर है और कितना नहीं है ये आपको समझना। अगर आप इसकी देखोगे तो इसका आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी, इसका लिक्विड देखोगे। अगर आप बाहर का ऑयल देखोगे तो जैसे अगर राइस ब्रान ऑयल है वो कितना थिक होता है, यस। वही थिकनेस आपकी जब आप खाते हो तो वही थिकनेस आपकी बॉडी में जा रही है, वही हार्ट के आसपास आउटर लेयर पे कवर हो रही है। सो ये ऑयल का ये सारी अगर आपने देखोगे इसका थिकनेस तो इसका सारा ग्राउंडनट का जो जो पार्टिकल्स है ये सारा नीचे रहेगा कच्ची घानी में। ये आपको ऐसे मिक्स करेंगे और ये देखिएगा ये इतना लिक्विड है, आप देख सकते हो कितना आराम से फ्लो हो रहा है। हाँ। तो आई मीन दिस इज द साइन कि ये प्योर है। तो आपको ये मिलेगा भी मार्केट में, बट यू हैव टू बी लाइक श्योर कि हाँ हम जो खा रहे हैं वो सारी चीजें सही खा रहे हैं या नहीं। बहुत लोग वो भी प्रेफर करते हैं ना कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, सो पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड गो टू अ लिटिल ये वाला क्वांटिटी, वो भी थोड़ा सा एक इश्यू आ जाता है। बट गाइस थोड़ा थोड़ा करके आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा हेल्दी, बिकॉज तेल हम यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में तेल जाता ही है। सो विद दिस थोड़ा सा आप ट्राई करो चेंज करने का अपना रूटीन कोल्ड प्रेस से। एंड पूजा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क, इफ यू कैन जस्ट टेल द डिफरेंस बिटवीन द हनी, जो आप हनी भी बनाते हैं, कुछ लोगों को ना हनी में डिफरेंस नहीं पता, कौन सा हनी प्योर होता है या कौन सा हनी लेना चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? So again, we deal into honey also. That is, we have an option that is केसर honey. It is directly from Kashmir. वहीं से आता है ये। या तो हमारे पास जो अगर आप नॉर्मल हनी अगेन इसी के जैसा है, जैसे ऑयल की हम बात करते हैं वैसे ही है उसका भी, कि अगर आप नॉर्मल हनी देखोगे वो काफी थिक होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। काफी बार हमने न्यूज में भी देखा है कि अगर आप मार्केट के दूसरे हनी देखते हो उसमें शुगर कंटेंट काफी होता है। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, या बट अगर आप दूसरी इनकी चीजें देखोगे, अगर मार्केट में जो हनी अवेलेबल है उसमें अगर आप रखोगे तो वो थिक हो जाएगा और यू कैन सी द शुगर कंटेंट उसमें कितना है। द हनी विच वी हैव दैट इज लिक्विड इन फॉर्म विच इज ट्रांसपेरेंट, वी हैव केसर का थिंग इनटू इट, सैफरन की, हाँ उसमें है। सो विच इज अगेन हेल्दी, प्योर, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, कुछ भी नहीं है उसमें। यू कैन कंज्यूम इट, आप उसको बाहर भी रख दो कुछ नहीं होगा, फ्रिज में रखो फिर भी निकालोगे वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इट वुड लाइक थिक नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। गुड टू नो दैट पूजा, आपने इतने सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है। ट्रूली आई थिंक इट्स एन आई ओपनर टू मेनी पीपल जो भी व्यूज देख रहे हैं। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू हेल्दी अफेयर एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल वंस अगेन पूजा। थैंक यू फॉर हैविंग मी नेहा, आई मीन एंड आई होप सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन आई वाज एबल टू शेयर की क्या क्या और चीजें इन्फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, लोगों तक पहुंच सकती है सारी चीजें। या श्योर, आई एम श्योर। एंड गाइज, अगर आपको डायरेक्टली हेल्दी अफेयर से प्रोडक्ट्स लेने हैं, इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इन द कमेंट्स आप पूछ सकते हैं और मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगी, प्लीज चेकआउट कीजिए एंड यू कैन रीच आउट टू पूजा। एंड थैंक यू वंस अगेन एंड सब्सक्राइब करो गाइज, सब्सक्राइब करो और शेयर करो लोगों तक ये ब्लॉग। ओके, चलो, थैंक यू सो मच पूजा, बाय बाय बाय।